Good morning, guys. In last lecture, we have discussed about the reaction of metal with water. उससे पहले हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा था. Now the next topic is reaction with acids. So starting from one activity, take samples of metals and non-metals. जो आपने पहले ही लिए थे वही आपको फिर से ले लेने हैं. यू कैन टेक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, चारकोल, सल्फर. ठीक है. In different test tubes, name them as A, B, C, D, E, F. With help of dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. What you have to do is you have to add dilute hydrochloric acid, nearly 5 ml into each test tube. Now observe the reactions. If no reaction occurs in a cold solution, warm the test tube gently. अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप धीरे से उस टेम्परेचर सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करें, मतलब थोड़ा सा उसको गर्म करें. Bring a burning matchstick near the mouth of the each test tube and repeat the same activity using dilute sulfuric acid also. Okay, and whatever you have, whatever the observation, just note down in the table number 4.5. So here you can see the reactions with dilute hydrochloric acid and then after sulfuric acid. What happens at the room temperature and what happens at the warm, मतलब little bit high temperature. वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. Now is there a difference in the way metals and non-metals react with acid? क्या दोनों का मेटल का और एसिड का रिएक्शन करने का जो टेक्निक था, जो मेथड था, जो उसकी रिएक्टिविटी थी वो डिफरेंट थी? और क्या आपको पॉप साउंड सुनाई देता है हर केस के अंदर? When you bring a burning matchstick near to the mouth of the test tubes, and you must have found that non-metals generally do not react with acids but metals do. नॉन मेटल्स जो होंगे, जैसे आपने ये सब सैंपल्स लिए थे, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, तो इन सब के अंदर वो रिएक्शन हुआ होगा एंड यू हैव लिसन द पॉप साउंड. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल लाइक सल्फर, कार्बन, in that case you will not able to listen the pop sound when bring a burning matchstick near to the test tube. Means that non-metal cannot react with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid, whereas metals can do. So here magnesium, aluminium, iron, copper, these are the metals which can react with the dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid and produce dihydrogen gas. The pop sound जो आपको सुना when you take the matchstick, burning matchstick near to the mouth of the test tube, the pop sound because of the hydrogen gas which is released by the reaction. So we can say that the metal can react with acid and produce dihydrogen gas. And then after we have reaction with bases. बेस के साथ क्या रिएक्शन होंगे देखो. ठीक है, तो अगेन यू हैव टू टेक द सेम सैम्पल्स. नाउ इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड you can take sodium hydroxide. So for that you have to prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 or 4 pellets of it in 5 ml of water. एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर 5 ml नियर बाई आपको सॉल्यूशन लेना, पानी लेना है और उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसके अंदर डाल के उसको डिसॉल्व कर देने हैं. And drop a piece of aluminum foil into it and then again take the burning matchstick near the mouth of the test tube and observe carefully. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो you can again listen the pop sound and again it is represent the hydrogen gas. So metals react with sodium hydroxide
to produce hydrogen gas. So again we can say that metals can react with the bases to produce dihydrogen gas. रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. नहीं होता है ऐसा नहीं है. जैसे अगर आप देखें कि भाई सपोज जिंक मेटल है, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया, सॉरी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर कर देते हैं, ठीक है, नॉन मेटल का सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन जो सॉल्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगी, वो कॉम्प्लेक्स होगी, जिसको हम सिंपल यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. यू विल लर्न दिस इन स्टैंडर्ड 10. ये सभी जो रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे हो पूरा चैप्टर 10th के अंदर भी आने वाला है. रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, बेस विथ मेटल, ये सब कुछ पूरा पूरा. एंड नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, पहले आप एक्टिविटी समझ लो कि एक्टिविटी के अंदर आपने अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हुए हैं. यू हैव टेकन कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, और उसके अंदर आपको जो मेटल्स ऐड करनी है वो अलग होगी. मतलब आपने कॉपर सल्फेट लिया है तो आप उसके अंदर जिंक डाल दें, कॉपर सल्फेट के अंदर आप आयरन डालें, जिंक सल्फेट के अंदर आप कॉपर डालें, आयरन सल्फेट के अंदर आप कॉपर डालें, जिंक सल्फेट के अंदर आप आयरन डालें, और देखें कि क्या हो रहा है. कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो यू हैव टू टेक 500 ml beakers, label them as ABCDE. Take about 50 ml of water in each beaker and dissolve in each beaker a teaspoon of each substance जो आपको दिए गए हैं. मतलब बीकर ए के अंदर आपको कॉपर सल्फेट डालना है और जिंक मेटल ऐड करनी है, जिंक के ग्रैन्यूल्स ऐड कर देने. उसी तरह से आपको सेकंड में कॉपर सल्फेट लेना है, उसके अंदर आयरन नेल Fe डालना है, आयरन डालना है, मतलब आप यू कैन टेक अ nail also. Then third one is zinc sulfate and you have to add copper. Then iron sulfate, उसके अंदर आपको डालना है copper, and last zinc sulfate और उसके अंदर डालना है आपको iron. और you have to observe the reactions, क्या उसके अंदर changes हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. So what changes do you observe in the various beakers? And you have read that one metal displaces another metals from its compound in its aqueous solution. देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके एक्वियस सॉल्यूशन में से रिप्लेस करेगा. एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन. जैसे आपने यहाँ पे लिया कॉपर सल्फेट, ये है CuSO4 या ZnSO4 या FeSO4, ठीक है, तो वो क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, CuSO4, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन. तो अब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि जैसे आप फर्स्ट सेकंड के अंदर देख रहे हैं कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ए और बी दोनों के अंदर, और फाइनली जब होता है कलर रिएक्शन होने के बाद तो दोनों के कलर्स चेंज हो जाते हैं, ब्लू नहीं रहते. तो आपने उस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट, फर्स्ट बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक लिया था, सेकंड के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन लिया था, और ये जिंक एंड आयरन बोथ ऑफ देम आर मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर. दोनों जिंक एंड आयरन दोनों जो हैं वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं. तो इसकी वजह से होगा ये कि ये दोनों जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को और आयरन भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देता है और खुद वहाँ पर कंपाउंड बना देगा. अगर आप रिएक्शन देखो जैसे लिखा है CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn, तो रिएक्शन होने के बाद बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है. उसी तरह से जिंक सल्फेट प्लस कॉपर है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है. यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात आती है, आप इसको 10th में डिटेल में पढ़ेंगे. द मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस द less reactive metal from its salt solution. तो जिंक एंड आयरन बोथ ऑफ देम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर को वो अपनी सॉल्ट सॉल्यूशंस में रिप्लेस कर लेते हैं. सो इन द बीकर नंबर AB there will be a reaction between the CuSO4 plus Zn and CuSO4 plus Fe, but in the CDE
जहाँ पर आपने Cu प्लस ZnSO4 प्लस Cu लिया था या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर लिया था, ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव। और अगर जिंक की बात करते हैं तो ZnSO4 प्लस Fe लिया तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो वो रिएक्शन भी नहीं होगा। सो देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक बाय कॉपर in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displace the copper in beaker T. So, अगर आप यहाँ पर देखें तो Cu जो है वो रिप्लेस होगा, किसी को करेगा नहीं। So when zinc can replace the copper in beaker A, why cannot copper replace zinc? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही कहा कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर रिप्लेस हुआ उसका मतलब कि वो लेस रिएक्टिव था, जिंक ने उसको रिप्लेस किया मतलब कि वो मोर रिएक्टिव था। अगर अब आप Cu को रिएक्शन करवाएं ZnSO4 के साथ तो Cu कैन नॉट रिप्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये डिस्प्लेसमेंट का रूल है, जो होगा वो कर नहीं पाएगा, उसी को नहीं कर पाएगा, समझे? ठीक है। So more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace more reactive metal. Now you understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Okay? क्योंकि D और E में भी वही था, मोर रिएक्टिव का सॉल्ट सॉल्यूशन था और लेस रिएक्टिव अंदर प्रेजेंट था। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव सॉल्ट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये 5 हमारे पास कुछ रिएक्शंस थे, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक जो है वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अलग अलग जगहों पे यूजेस हैं सबके मेटल्स के। So you should be able to guess why metals are used in making machineries like automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, because they are good conductor of heat, good conductor of electricity, stronger, heavier, etc. etc. And you are also familiar with the uses of some non-metals. We have given here some uses of the non-metals, like if they are essential for our life, which all living beings inhale during breathing. ऑक्सीजन वो नॉन मेटल हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं फॉर ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स यूज इन द फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, तो वो नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन ऑल्सो। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस लाइक क्लोरीन को हम वाटर प्योरीफायर में यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, जिसको बोला जाता है टिंचर आयोडीन विच इज़ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड टू ऑन बाउंड्स लाइक एंटीसेप्टिक। एंड नॉन मेटल्स यूज्ड इन द क्रैकर्स ऑल्सो। फॉस्फोरस होता है वो, रेड फॉस्फोरस। तो ये सब कुछ यूजेस आपको यहाँ पर दिए थे। अगर आपको कुछ पता है तो आप भी यहाँ पर अपने यूजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।